بدبخت اس قلم ارشی نور کس نمبر 8۔ جاذب کی آنکھوں سے آنسو کن پٹیوں پر بہہ گئے، پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نرگس بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا رتابہ کا، گھر جا کر اسد کیا سلوک کرے گا بچے کو دیکھ کر۔ اب تو سارے رشتہ دار بھی مبارکباد دینے آئیں گے۔ اسد نے سب کے سامنے اس بچے سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی لوگوں سے۔ اس کی پریشانی رتابہ بھی دیکھ چکی تھی۔ آپ کی پریشانی کی وجہ میں جانتی ہوں، آپ بھی ڈر رہی ہیں نا اسد کے غصے سے۔ وہ مجھ سے نفرت کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکے گا۔ نرگس اسے اس کی معصومیت کی انتہا پر دیکھتی رہ گئی۔ اس بھولی بھالی 20 سالہ رتابہ کو کیا معلوم تھا کہ شادی، شوہر اور اولاد کیا ہوتی ہے۔ ساری دنیا داری سے، سارے رسم و رواج سے، سارے رشتوں سے دور اس کی پرورش ہوئی تھی۔ یہ تو اس کے نصیب کی ستم ظرفی تھی کہ وہ جب رشتوں میں بننا شروع ہوئی تو بیوی بنی جاذب جیسے کٹھور پتھر دل شخص کی، اور ماں بنی تو ایک ناجائز بچے کی۔ وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ چوم کر بولی، امی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو امی، آپ بھی اسد کی طرح یہی سمجھتی ہیں کہ میں آپ سب کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ نرگس نے ناک چڑھائی، یہ کیسا سوال ہے اور تمہارے ذہن میں آیا کیوں؟ اسد کو لگتا ہے میں جھوٹی ہوں، دھوکے باز ہوں اور آپ کو بیوقوف بناتی رہتی ہوں۔ نرگس نے حیرانی سے اسے دیکھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا وہم ہے یہ۔ وہم نہیں، حقیقت ہے امی۔ جس دن اسد لندن جا رہا تھا اس دن اس کی ساری باتیں میں نے سن لی تھیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کہوں، اگر میری نفرت میں اسد اپنے بچے کو بھی قبول نہیں کرے گا تو میں اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں، قاتل بن جاؤں، ماں ہو کر اس ڈائن کی طرح جو بھوک لگنے پر اپنا بچہ خود نگل لیتی ہے۔ لیکن پھر اس کی دھڑکنیں، اس کا سانس لیتا ننھا سا وجود مجھے اپنے اندر دہائیاں اور سسکیاں لیتا سنائی دیا۔ مجھے ایسے لگا اس معصوم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روکا ہو کہ ماں یہ ظلم نہ کرنا میرے ساتھ، تجھے زمانے نے دھتکارا، اپنی ٹھوکر پر رکھا، لیکن تو مجھے نہ ٹھکرا۔ رتابہ کے آنسو بچے کے گالوں پر گرے، وہ آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ امی مجھے یہ جب بھی دیکھتا ہے نا تو اس کی نظر میں سوال نہیں ہوتا کوئی بھی۔ یہ مجھ سے نہیں پوچھتا میں کون ہوں، یہ مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ میں گنہگار ہوں یا گناہوں کی گٹھری ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک خوف دکھائی دیتا ہے مجھے کہ میں اسے چھوڑ تو نہیں دوں گی۔ نرگس چپ چاپ ساکت بنی اسے دیکھتی رہی۔ گزرے ہوئے وقت میں جاذب کو آپ نے مجبور کر کے مجھ سے نکاح کروایا تھا، آنے والے وقت میں وہ آپ کو مجبور کر کے مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے، تو میرا یہ بچہ میرا سہارا ہوگا۔ میں بھی سب سے کہہ سکوں گی میں لاوارث نہیں، میرا وارث میرا بیٹا ہے۔ پھر وہ اس بچے کو گلے سے لگائے چومنے لگی۔ نرگس نے اس سے کچھ نہ کہا، بس اسے سنتی رہی۔ جاذب فون سے لت پت جہاں پڑا تھا وہاں قریب ہی ایک ہوٹل تھا۔ ہوٹل کے مالک نے ہوٹل کھولا تو ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، چچا جلدی آؤ، روڈ پر کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ بچے کے ساتھ بھاگتا ہوا روڈ پر آیا اور دیکھتے ساتھ ہی جاذب کو پہچان گیا۔ اس نے جلدی سے شاہ جی کو کال کی، شاہ جی، او ماڑا اسکول کے پیچھے کچے روڈ میں ہوٹل والا دینو بول رہا ہوں، جلدی آئیں شاہ جی، یہاں جاذب کو کسی نے مار دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سب وہاں موجود تھے۔ شاہ جی جاذب کو دیکھ کر گر پڑا۔ اسد چلایا، یہ زندہ ہے، جلدی چلو ہاسپٹل۔ وہ اسے اپنی شال میں لپیٹ کر ہاسپٹل بھاگے۔ جاذب کو 4 گولیاں لگی تھیں جس سے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی اور ایک گردہ مکمل طور پر نکارہ ہو گیا تھا۔ جو گولی ریڑھ کی ہڈی میں لگی اس سے جاذب کی جان بچانا ناممکن نظر آ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے رتابہ 3 دن بعد گھر لوٹی تھی۔ اسد نے آ کر اس کا حال پوچھنا تک گوارا نہ کیا۔ نرگس کو وہ بچہ بہت پسند تھا، وہ اس کی طرف ایسی کھینچی آتی جیسے وہ اس کا اپنا خون ہو۔ اس کا نام بھی نرگس نے ہی رکھا، محمد زیان شاہ۔ رتابہ، جی امی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کچھ سمجھانا تھا تمہیں۔ جی بولیں۔ رتابہ زیان کو سلا چکی تھی، بیٹا میں کہنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن بات بھی ضروری ہے۔ نرگس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھ کر رتابہ پیار سے بولی، امی بولیں، آپ جو بھی کہنا ہے بلا جھجک کہیں۔ تم وعدہ کرو، ناراض تو نہیں ہوگی مجھ سے تم؟ امی خیر تو ہے نا، ایسی کون سی بات ہے جو آپ وعدہ لے رہی ہیں مجھ سے؟ نرگس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زیان اسد کا بیٹا نہیں ہے، رتابہ نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ لیکن آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ؟ آپ کو بھی مجھ پہ شک ہے؟ نہیں میری جان، مجھے کیوں ہوگا تم پر شک؟ تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ زیان اسد کا بیٹا نہیں؟ تو پھر کس کا ہے؟ اس حیوان کا جس نے تمہاری… آگے نرگس بول ہی نہ پائی۔ رتابہ کی آنکھوں میں حیرت کے بجائے خوف و ہراس پھیل گیا۔ دیکھ میری بچی، بہت بھولی ہو تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عورت ماں کیسے بنتی ہے۔ ماں بننے کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں ہوتا، شادی سے پہلے بھی بچہ ہو سکتا ہے لڑکی کو۔ نرگس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ساری حقیقت سے آگاہ کیا رتابہ کو۔ جب بیٹی بن بیائی ماں بن جائے نا تو وہ جینے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ معاشرہ کیا، اس کے اپنے سگے خونی رشتے بھی اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ وہ بچہ ماں کے لیے زندگی بھر کی رسوائی اور اپنے لیے گالی بن کر رہ جاتا ہے۔ معاشرہ اسے ناجائز اولاد کا لقب دیتا ہے۔ نرگس کی بات سن کر رتابہ کا دل و دماغ بالکل بند ہو گیا۔ وہ بالکل ساکت پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ رتابہ کچھ بولو بیٹا، مجھے تمہاری ایسی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور زیان کو گود میں لیا، اسے
कोई कबूल नहीं करेगा, मेरे लिए भी ये नाकाबिले कबूल होगा, अपनी माँ के लिए रुसवाई का सबब बनेगा। नाजायज़ बच्चा है ये, दूसरे अल्फाज में कहें तो हराम का जना, इसी नाम से पुकारा जाएगा ये। नहीं बेटा, दुनिया में आने वाला कोई बच्चा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब आदम की औलाद हैं। तो जिसके साथ आदम का नाम लगे वो हराम कैसे हो सकता है? मासूम से बच्चे को हराम कहना भी बहुत सख्त गुनाह है। गुनाह तो ये खुद भी बहुत बड़ा है, मेरे लिए भी, अपने लिए भी। इसे मार देना चाहिए था ना मुझे। वो इस तरह बच्चे को देखने लगी जैसे अभी मार डालेगी इसको। नरगिस ने इससे डरकर बच्चा ले लिया। क्यों मार देना चाहिए था? इसमें इस मासूम से फरिश्ते का क्या कसूर? ये इस भेड़िए का बच्चा है जिसने मुझे वो सारा वाक़या याद करते ही रुताबा का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। शदीद ज़हनी अज़ियत से वो अपने बाल नोचकर दीवार से सर टकराने लगी। नरगिस ने रोते हुए ज़ियान को बेड पर डाला, रुताबा को सँभाला। वो अपना सर फाड़ चुकी थी। अम्मी, मैं गंदी हो गई, बहुत गंदी, नापाक हो गई मैं। किस बेगैरत इंसान के बच्चे को जन्म दे दिया मैंने। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। ज़ियान भी बिलक बिलक कर रोने में माँ का साथ दे रहा था। रुताबा संभाले नहीं समझ रही थी नरगिस से। असद जो अभी अभी ऑफिस से आया था, रुताबा की चीखो पुकार सुनकर अपने कमरे में चला गया। ये क्या हो गया मुझसे? वो फूट फूट कर ऐसी रोई कि इसके मुँह से राल टपकने लगी। अम्मी, इस गंदे इंसान का गंदा खून मैं अपनी कोख में 9 माह तक संभालती रही। नरगिस इसे छोड़ती तो वो दोबारा फर्श पर सर मार मार कर खुद को मज़ीद लहूलुहान कर देती। इसकी हालत देखकर नरगिस पर भी क़यामत टूट पड़ी थी जैसे। कुछ देर में रुताबा चीखती चिल्लाती हचकोले खा लेती बेहोश हो गई। नरगिस ने इसे खींचकर बेड पर डाला। दूसरी तरफ ज़ियान भी रो रो कर निढाल हो चुका था। नरगिस ने बच्चे को उठाया, वो किसी तरह चुप नहीं हो रहा था। असद काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। नीचे उतर कर इसने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ नरगिस खुद भी सिसकियों से रोते हुए बच्चे को बहला रही थी। दूसरी तरफ फ़ोन से भरे चेहरे के साथ रुताबा होश की दुनिया से बेखबर पड़ी थी। अम्मी, क्या हो रहा है ये सब? तमाशा हो रहा है सच्चाई का। कौन सा तमाशा, कौन सी सच्चाई? तुम नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन आप समझ लें अम्मी, मैं ये शोर शराबा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त से बाहर तो अब मैं भी तुम्हारे लिए होती जा रही हूँ। कहो तो मैं भी चलती बनूँ इस घर से। नरगिस का रद्द-ए-अमल देखकर वो चला गया वहाँ से। ज़ियान रोते रोते थक कर सो गया। नरगिस ने जल्दी से रुताबा का खून रोका और बैंडेज की। फिर वज़ू बनाकर अल्लाह के आगे बैठ गई। रुताबा की सलामती की दुआएं मांगने लगी और अपने लिए माफ़ी भी कि वो मजबूर ना होती असद के हाथों तो कभी रुताबा को सच ना बताती। लेकिन वो छुपाती भी कब तलक। एक ना एक दिन रुताबा पर ये तल्ख़ हकीकत आश्कार होनी थी। जासिब की हालत मुसलसल ख़तरे में थी। वो आईसीयू शाजी बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर आईसीयू में गया। आंखें खोल मेरे यार, बस एक बार उठकर मुझे गले से लगा ले। बस एक बार, मैं सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। बस एक बार तो आंखें खोल दे। बहुत दर्दनाक अजियत से शाजी रो रहा था। देख, जिस शाजी के होठों से मुस्कुराहट कभी जुदा नहीं होती थी, आज इस शाजी के ना थमते हुए आंसू देख। तुझे हमारी यारी की कसम, उठ जा, आंखें खोल दे मेरे यार, आंखें खोल दे। रुताबा बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना बाल संवारे, ना कपड़े बदले, ना खाना खाया। भूखा गुजार दिया इसने पूरा दिन। बिल्कुल बिखर कर रह गई थी वो। ज़ियान की तरफ तो देखना भी गवारा ना किया रुताबा ने। नरगिस ने ही संभाला ज़ियान को। बहुत ज़्यादा ज़हनी कर्ब में मुब्तला थी वो बच्चे की हकीकत जानकर। नरगिस किसी काम से किचन में मसरूफ़ थी जब ज़ियान अचानक डर कर उठा और रोने लगा। कमरे में मौजूद रुताबा पहले इसे देखती रही, फिर अचानक उठी और इस 4 दिन के बच्चे को तमाचे मारने शुरू कर दिए। नरगिस ज़ियान की आवाज़ सुनकर अंदर आई। रुताबा को इसे पीटता देखकर वो भागी और धक्का देकर रुताबा को पीछे हटाया। ज़ियान का मुँह इतना सुर्ख हो रहा था जैसे खून रस रहा हो। वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। ज़ियान के रोने से नरगिस को अपना दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। नरगिस ने गुस्से से रुताबा को थप्पड़ दे मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ हो तुम या डाइन? ऐसा करते हैं बच्चे के साथ? क्यों अपना बचपन इस पर दोहरा रही हो? क्यों इसे भी बख्ती बनाना चाहती हो? तुम्हारी तो माँ नहीं थी, लेकिन तुम तो हो ना इसकी माँ। वो रोते हुए चिल्लाई। मैं इसे जब भी देखती हूँ ना तो इस वहशी इंसान की वहशियत याद आ जाती है मुझे, जिसकी ये निशानी है। नहीं बन सकती मैं इसकी माँ। आप दे दें किसी यतीम खाने में इसको, या फेंक दे किसी कचरे के ढेर में, उठा लेगा इसे भी कोई। बस करो रुताबा, पागल तो नहीं हो गई तुम? नरगिस बच्चे को बाहर ले गई। नरगिस की तबीयत रात भर बच्चे के साथ जगने की वजह से ख़राब हो गई। ज़ियान को सुलाकर वो करीबी क्लिनिक गई। ज़ियान जाग कर भूख से रोने लगा। रुताबा अंदर आई, चादर पहनकर ज़ियान को उठाया और घर से बाहर चली गई। वो रोते रोते रुताबा की चादर मुंह में लेकर चूसने लगा। रुताबा तेज तेज कदम चलती सोसाइटी से बाहर आई, जहाँ एक वीरान सी जगह पर बहुत बड़ी
कचरा कुंडी थी। इसने ज़ियान को वहाँ कचरा कुंडी के ढेर पर डाल दिया। ज़ियान ने इसकी चादर अपनी मुट्ठी में कस ली और वो चादर छुड़ाने लगी। गलीज़ इंसान की औलाद है तू, यही गलाज़त का ढेर तेरा ठिकाना है। ज़ियान हाथ पाँव मार मार कर रोता रहा। वो आस-पास से झाँकती वहाँ से पलट गई। अचानक वहाँ कचरा कुंडी के दूसरी तरफ लगी हल्की-हल्की आग भड़क उठी। वो हवा में इसका धुआँ फैलने लगा। अचानक वहाँ कचरा कुंडी के दूसरी तरफ लगी हल्की-हल्की आग भड़क उठी और वहाँ भी इसका धुआँ फैलने लगा। रुताबा तेज़-तेज़ कदमों से चल रही थी। इसे जलने की बू आई। इसने जैसे ही पलट कर देखा, कचरा कुंडी में आग लगी हुई थी। वो भागते हुए पलटी तो ज़मीन पर मुँह के बल जा गिरी। ऑपरेशन हुआ था इसका, तकलीफ से वो उठ ना सकी बगैर सहारे के। इसकी नज़र कचरा कुंडी में एक एक कत्ती पर पड़ी जो आग में फलांग कर अपने कुत्ती पर पड़ी जो आग में फैलाकर अपने बच्चे मुंह में डाले उनके बचा रही थी और आग से बाहर लाकर इनको प्यार से चाट रही थी। रुताबा ने अल्लाह का नाम लिया, हिम्मत की और कचरा कुंडी तक पहुंची। आग के शोले इसके बच्चे तक पहुंचने से पहले ही इसने ज़ियान को उठाकर दिल से लगा लिया। माँ के सीने से लगते ही ज़ियान बिल्कुल खामोश हो गया। वो बच्चे को चादर में लपेट कर बहुत मुश्किल से घर तक आई। आगे नरगिस बहुत बेचैनी से इसकी मुंतजर थी। इसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे गिरने की वजह से। कहाँ गई थी तुम ज़ियान को लेकर, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने, क्या हुआ है? वो कुर्सी पर बैठकर ज़ियान को देखने लगी। ज़ियान ने दोनों हाथों में इसकी शर्ट पकड़ी हुई थी, जैसे इस बच्चे को भी मालूम हो गया था कि माँ मुझे दोबारा छोड़ ना दे। रुताबा ने बरसती आंखों से इसे देखा। वो अपनी भूख भी माँ की जुदाई में भूल गया था। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे मैं, नरगिस सख्ती से बोली। इसे टांगों में भी बहुत दर्द हो रहा था गिरने की वजह से। वो सर झुकाए बोली, मैं ज़ियान को छोड़ने गई थी। कहाँ? कचरे के ढेर में। नरगिस को इसकी बात सुनकर यकीन न आया। क्या कहा? कचरा कुंडी में फेंकने गई थी? जी, वो रो पड़ी। फेंक भी आई थी, लेकिन नरगिस सर पकड़कर बैठ गई। या खुदाया तबा, तुम्हारे दिल में ज़रा खौफ खुदा नहीं रहा? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अपना बचपन भूल गई हो? अपने साथ होने वाली सारी ज़्यादतियों का सारी महरूमियों का बदला इस नन्ही सी जान से लेने चली हो? इसका क्या इसका क्या कसूर है, बताओ मुझे। हॉस्पिटल में तो तुम इसे अपना सहारा, अपना वारिस कह रही थी, और अब इसी बच्चे से अपनी ममता का हक भी छीन रही हो। अरे ऐसा जुल्म अपनी ही औलाद के साथ! क्या तुम भी इनकी तरह जालिम बनना चाहती हो, जिन्होंने हमेशा तुम पर जुल्म किया? जानवर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। और तुम? वो रो रो कर बोली, मुझसे गलती हो गई, मैं जज्बात में आ गई थी। तुम इस वहशी इंसान का बच्चा समझकर इससे दस्तबरदार होना चाहती हो, यानी तुम भी एक वहशिया माँ बनना चाहती हो, बिल्कुल इसकी तरह जो अपने गुनाह का बीज तुम्हारे अंदर बोकर खुद रूपोश हो गया, और तुम नन्ही सी कली को कुचलकर फरार होना चाहती हो। इसने नाम सर हिलाया। नरगिस अफसोस भरे लहजे में बोली, मैं चाहती तो इसको पैदा होने से पहले ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन मैं कैसे कातिल बनती इस मासूम सी जान की? मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, और तुम माँ होकर बेज़मीर हो गई। नो माँ, इसे अपनी कोख में रखा तुमने, अपनी सांसों से, अपनी धड़कनों से भी ज़्यादा करीब महसूस हुआ ये तुम्हें। अपने खून से सींच कर, अपनी जान पर खेल कर पैदा किया है तुमने इसे। अब इतनी जल्दी हार मान ली वक्त के आगे? रुताबा, तुम इतनी बुज़दिल नहीं हो, ना ही ज़ालिम। अल्लाह की आजमाइशें इसके महबूब बंदों पर ही आती हैं। हज़रत मरियम बीबी भी बहुत कड़े इम्तिहान से गुजरी थी। जब ईसा को बगैर बाप के उन्होंने जन्म दिया, अल्लाह के हुक्म सरखम किया उन्होंने। बदनामी का ये ज़माना या ज़माने की परवाह नहीं की थी उन्होंने, बस अल्लाह के हुक्म को बजा लाया था। हम तो इनकी धूल के बराबर भी नहीं। हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। तुम्हारे माँ बनने में क्या राज पोशीदा है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने कोई भी चीज़ रायगा या बेकार नहीं बनाई। ज़िंदगी आज ज़िंदगी इतनी मुश्किल है तो कल उसको आसान भी होगी। अल्लाह पाक बाज़ लोगों से सब कुछ छीन कर इनको आज़माता है, और बाज़ औक़ात सब कुछ अता करके भी आज़माता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम छिन जाने पर मायूस होते हैं या सब्र करते हैं, और मिल जाने पर इसे भूल जाते हैं या शुक्र अदा करते हैं। मेरे रब का इंसाफ देखो, वो छीनने पर भी सब्र वालों के साथ है, और अता करने वालों पर भी शुक्र करने वालों के साथ है। और जिसके साथ रब हो तो इसे क्या परवाह इस फ़ानी दुनिया की, जहाँ हम चंद दिनों के मुसाफिर हैं। ज़िंदगी क्या है बेटा? पैदा होते वक्त अज़ान और मरते वक्त नमाज जनाजा के दरमियान का वक्फा ही तो है। वो सर झुकाए कुदरत के कानून पर खामोश रही। अल्लाह की नेमत को ठुकराने वालों के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर नरगिस का हर लफ्ज़ रुताबा की रूह में तहलील हो रहा था। तुम कल कहाँ थीं और आज कहाँ हो? अपनी ज़िंदगी पर गौर करो। कितनी रब की अताअत की, कितना सब्र किया, कितने शिकवे किए, कितना इस पर यकीन किया। सब कुछ अपने हवाले से मांगते हैं हम, कभी खुद को रब के हवाले किया है? नहीं, हमने हमेशा खुद को अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स की कैद में रखा है। इसलिए तो हमें गमों से रिहाई नहीं मिलती। अपनी ज़ात को रिहा करो नफ्स के पिंजरे से। ये गम, ये दर्द हज़ार बार मिलने पर भी बेअसर हो जाएंगे जब हमारी ज़ात रब के आगे बाअसर होगी। और ऐसा तब होगा जब हम खुद को अल्लाह के सपुर्द करेंगे, इसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लें।
रुताबा ने नरगिस की तरफ देखा। अम्मी, मुझे अल्लाह माफ़ करे कहा, जो मुझसे गलती हुई। गलती करते करते रुक जाना अल्लाह की रज़ा की निशानियों में से है। अल्लाह तो हमसे राज़ी रहता है, बस हम ही इससे राज़ी नहीं रहते और हमारी छोटी सी नेकी पर भी खुश हो जाता है और हम इसकी हज़ार नेमतों पर भी नाखुश ही रहते हैं। ज़ियान भूख से रोने लगा। रुताबा जल्दी से इसे दूध दूध पिलाने लगी। तुम्हें पता है में भी एक बच्चे में भी एक हुनर होता है। बच्चे में हुनर? रुताबा हैरान हुई। बच्चे को एक ही हुनर हुनर आता है, रोने का, और वो रोक कर ना सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जा करता है बल्कि अपनी बात भी मनवा लेता है। बच्चे को अपने रोने पर बड़ा कामिल यकीन होता है कि इसका रोना रायगा नहीं जाएगा। इस बच्चे की तरह अपना यकीन कामिल करो और रोकर मनवा लो अपनी बात अपने रब से। वो तो अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। रुताबा नरगिस की बातों में खोकर अपना दर्द भूल गई। जाजिब की जान बच गई थी, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया था। शाजी ने इस पर सदके के बकरे वार कर गरीब बस्तियों में बांटे। जाजिब 72 घंटों बाद होश में आया था। इसके होश में आते ही इसके सब दोस्तों ने शुक्राने के नफल अदा किए। जाजिब 20 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहा। रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने 6 माह का वक्त दिया था। शाजी इसे अपने साथ अपनी हवेली ले गया और इस तरह इसका ख्याल रखा जैसे माँ बच्चे का रखती है। नरगिस ज़्यादातर वक्त ज़ियान के साथ गुजारती। असद से वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। नरगिस की लापरवाही असद की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अभी भी वो ऑफिस से थक कर वापस आया तो नरगिस इसे ज़ियान को गोद में लिए मिली। अम्मी, इसके अलावा भी इस घर में कोई इंसान मौजूद है? हर वक्त इसकी आओ-भगत में ना लगी रहा करें। इसकी माँ को दें, जिसकी ये ज़िम्मेदारी है। नरगिस इसे रुताबा के हवाले करके आई। अम्मी, आपको तो बिल्कुल मुझे भूल ही गई हैं, जैसे मैं इस घर का फ़र्द ही नहीं हूँ। नरगिस ने इसे पास बुलाया और इसका सर अपने गोद में रखा। तुमने भी तो नज़रअंदाज कर रखा है मुझे। ना बात करते हो, ना पास आते हो, बस आते साथ खुद को कमरे में बंद कर लेते हो। आप मुझे मेरी पहले वाली माँ जैसी मिले तो मैं पास आऊँ। आपको इन दोनों के अलावा फुर्सत ही नहीं, और इन माँ बेटे का वजूद आपके करीब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? बच्चा ना करो कबूल, लेकिन रुताबा तो तुम्हारी बीवी है ना। नहीं मानता मैं इसे अपनी बीवी। बेटा, सच्चाई और हकीकतें ना मानने वालों की मोहताज नहीं हुआ करती। वो तो बस अपनी ज़ात में लाजवाल होती हैं और एक ना एक दिन अपना आप मनवा कर रहती हैं। खुद को तकलीफ देने से बेहतर है किस्मत का खेल कबूल कर लो। ये खेल ये किस्मत का खेल नहीं अम्मी, आपकी ज़बरदस्ती का सौदा है। मेरे बच्चे, ये याद रखना, हर जज्बा शिद्दत पाकर पलट जाता है, चाहे वो मोहब्बत का या नफ़रत का ही क्यों ना हो। हर चीज़ अपनी इंतहा पर पहुंचकर मादूम हो जाती है, अपनी वक़्त खो बैठती है। इसलिए शिद्दत ना नफ़रत में अच्छी, ना मोहब्बत में। खुद को मियाना रवि के रास्ते पर डालो, ताकि आने वाले वक्त और हालात में खुद को अपने काबू में रख सको। असद माँ की बात सुनकर उठ बैठा। आपका मतलब है मेरी शदीद नफ़रत मोहब्बत में बदल सकती है? हाँ, क्योंकि नफ़रतों की अपनी कोई ज़मीन नहीं होती। ये हमेशा मोहब्बत की ज़मीन पर वक्ती कब्ज़ा करती हैं। वो आप आइब्रो उचकाकर बोला, ये वक्ती कब्ज़ा नहीं है अम्मी, ये मौत के शिकंजे की तरह है, जिस पर पड़ता है तो रूह खींच कर ही दम लेता है। नरगिस मुस्कुराई। मेरे बच्चे, रूह निकल कर ही जिस्म से अब्दियत का सफ़र तय करती है। ये आर्जी मौत तो महज दुनिया का दिखावा है। कुदरत का कानून है कि हर जानदार सदा जानदार नहीं रहता। तगय्युरात आते रहते हैं। तब्दीली कायनात का हिस्सा है। अपने अंदर तब्दीली की लचक पैदा करो, वरना टूट कर रह जाओगे। वो माँ को देखने लगा। अम्मी, टूटा नहीं हूँ, ऐसा लगता है तोड़ दिया गया हूँ। नरगिस समझ गई कि वो इसी पर चोट कर रहा है। ये सब कुछ मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझसे मेरे सब्र का ऐसा कड़ा इम्तिहान भी लेगी कि मैं ज़ब्त भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में ज़ब्त कभी भी सब्र के मेयार तक नहीं पहुँच सकता। वो कैसे? असद ने सवाल किया। ज़ब्त और सब्र में बहुत फ़र्क है। ज़ब्त बहुत तकलीफ़देह होता है और ज़ब्त हमेशा खुद पर जबर करके किया जाता है, और सब्र पुरसुकून होता है। सब्र में खुद पर जबर नहीं करना पड़ता। सब्र अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके किया जाता है। वो ना समझते हुए नरगिस को देखने लगा। आसान अल्फाज में समझाती हूँ। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तो भैया का इंतकाल हो गया था और भाभी भी 3 साल बाद हम सबको छोड़कर चली गई थी। बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना। मेरा अपना भी घर-बार था, ऊपर से तुम दोनों भाइयों की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर थी। तुम्हारी तरफ मेरा रुझान इतना बढ़ गया था कि मैं अयाज पर तवज्जो न दे सकी, और वो कब मुझसे इतनी दूर हो गया मुझे पता ही ना चला। और इसने ना सिर्फ दूसरी शादी कर ली बल्कि मेरी गोद भी खाली कर गया। मैं सब्र और बर्दाश्त के अलावा क्या कर सकती थी? तुम दोनों से नफरत करती कि तुम्हारी जिम्मेदारियों में मेरा घर खराब हो गया। मैं औलाद के होते हुए भी बेऔलाद हो गई। तुम दोनों तो बिल्कुल मासूम से थे, छोड़ भी नहीं सकती थी। तुम दोनों को पालने की मुझे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। तो क्या मैं तुम जैसी नन्ही सी मासूम सी जानों से दुश्मनी करती या बदले लेती?
लेती। बेटा, अपनी औलाद से जीते जी दस्तबरदार होना कितना तकलीफ दह है तुम सोच भी नहीं सकते। मैं रब की रज़ा पर यहाँ भी सब्र किया और अपनी ममता को तुम पर कुर्बान कर दिया। सोचो, अगर मैं अपना घर बचाती और तुम दोनों को तुम्हारे हाल पर छोड़ देती तो तुम आज कहाँ होते, क्योंकि तुम बिन माँ बाप के बच्चे थे। ज़माना अपनी बर्बरियत के इतने दाग लगाता तुम पर कि तुम जीने के काबिल ना रहते। हज़रत की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन अम्मी, आपने हमें पाला, हमारी परवरिश की, एक इज़्ज़तदार मुकाम है हमारा माशरे में, ख़ानदान में। हमें अपने वालिदैन का मालूम है हम किसकी औलाद हैं, लेकिन जिसे आपने मेरे लिए मुंतखब किया, बकौल आपके, वो तो अपने माँ बाप तक को नहीं जानती। आज के दौर में कौन अपनाता है किसी को का छोड़ा हुआ गुनाह। नरगिस बोली, तुम्हें मालूम है कि वो किसी का छोड़ा हुआ गुनाह ही है? जी मालूम नहीं, यकीन है। ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सरवाइव करके आई है। मुझे तो लगता है ये घर से भागी हुई लड़की है। वापसी के तमाम रास्ते खुद पर बंद देखकर ये झूठी कहानी बनाकर यहाँ आ पहुँची, और आपने भी भला किसी तस्दीक के, किसी सच्चाई के मुझे कुर्बानी का बकरा समझकर कुर्बान कर दिया, महज अपनी रहमदिली की खातिर। आप इसे किसी ट्रस्ट भी भिजवा सकती थी ना, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादती की। नरगिस इसकी आंखों से आंसू साफ करती बोली, मैंने ज़्यादती नहीं की तुमसे, बल्कि तुम्हें बचाया है बेटा। अम्मी, इसे बचाना नहीं उजाड़ना कहते हैं। आप इसे मेड बनाकर रख लेती। चलो मान ली तुम्हारी बात, मैं इसे मेड बनाकर या बेटी बनाकर ही रख लेती, लेकिन इसके माँ बनने के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। सबकी उंगलियां चुपके चुपके तुम्ही पर उठती, और अगर कल को तुम्हारी शादी होती तो इसे तुम्हारी बीवी कभी बर्दाश्त ना करती, और मैं इसे खुद से जुदा ना कर पाती। तो बताओ, फिर अपना घर बचाने की खातिर तुम मुझे छोड़ देते? वो नरगिस के गले लग गया। नहीं अम्मी, मैं मर सकता हूँ, आपको छोड़ नहीं सकता। वो भी इस पर अपनी ममता नछावर करके बोली, बेटा, रुताबा को छोड़कर मैं मर जाती। वो मेरे दिल में ही नहीं, मेरी रूह में समा चुकी है। जिसे चाहा जाए तो फिर इसके ऐब नहीं देखे जाते, इसलिए तुम्हें अपनी जान का वास्ता देकर राज़ी किया था। बेटा, तुम भी बदगुमान होना छोड़ दो, बदगुमानी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी, मैं इसे इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरी ज़ात की इंतहा है ये। बेटा, ये भी हो सकता है तुम गलती पर हो। मैं गलती पर? वो अपनी तरफ इशारा करके बोला, वो कैसे? देखो बेटा, हम चलते जाएँ तो सफ़र ख़त्म नहीं होता, रुक जाएँ तो सांसें नहीं रुकती। हम हंसने लगें तो कहके जन्म लेते हैं, और हम रोने लगें तो आंसू ख़त्म नहीं होते। जिसे चाहने लगें तो चाहत ख़त्म नहीं होती, और टूटने लगें तो ज़र्रे ख़त्म नहीं होते। हर शय के साथ एक रब्त मुंसलिक होता है। हर इंसान के सहने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। हो सकता है कि कोई सह रहा हो और हम सिर्फ कह रहे हों। दूसरों की जगह खुद को रख कर किसी के दुख दर्द का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है। नरगिस की बात सुनकर वो खामोश हो गया, क्योंकि वो नरगिस को मज़ीद दुखी नहीं कर सकता था। जाज़िब व्हील चेयर्स पर बैठा अपनी बेबसी को खामोशी से सह रहा था। शाजी ने आकर इसका कंधा थपथपाया। क्यों उदास है मेरे यार? कुछ नहीं यार, बस खुद को देखकर पेशमा हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, और क्यों? क्या यह बद्दुआ थी, या किसी के बहते हुए आंसू का अजाला जो मैं काट रहा हूँ, या मेरे गुनाहों का बोझ था जो आज मैं अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल ही नहीं रहा? देख यार, यार उदास मत हो। उदासी हमेशा इंसान को मायूस बना देती है, और मायूस इंसान हासिल को भी गंवा बैठता है। हादसात इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कुछ हादसे हमेशा के लिए दिलो दिमाग पर अपना असर छोड़ जाते हैं, कुछ सबक सिखाकर हदायत की राह पर डाल जाते हैं, और कुछ गुमराही की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अपने बीते लम्हों या कोताहियों पर खुद को कोसते रहना ठीक नहीं। बहुत बाहिम्मत होते हैं वो लोग जो अपने अंदर के तूफ़ानों का सामना करते हैं, और इससे भी ज़्यादा बाहिम्मत होता है वो इंसान जो अपनी गलती को तस्लीम करके इस पर सरख़म कर लेता है और इसे सुधारने के लिए कोशा रहता है। फिर वो जाज़िब के कदमों में बैठा। समझ आई मैं कहना चाह रहा हूँ? जाज़िब ने हाँ में सर हिलाया। आइंदा तेरे मुँह से मैं ऐसी कोई बात ना सुनूँ। शाची उंगली से इसके चेहरे का अहाता करके बोला, और ना इस थोबड़े पर आइंदा उदासी नज़र आए मुझे। शाजी के साथ जाज़िब भी हंस पड़ा। गुजर जाएगा ये वक्त भी, हम हैं ना तेरे साथ। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए। ज़ियान 1 साल का हो चुका था। असद के दिल पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। वो जैसा ज़िद्दी कल था वैसा ही आज भी था। अब तक इसने रुताबा को कबूल नहीं किया था। बात करना या हाल अहवाल पूछना तो दूर की बात, इनके बीच सलाम दुआ तक ना थी। नरगिस भी समझा समझा कर थक कर खामोश हो गई थी। नरगिस का भाई इस्लामाबाद से आया हुआ था। नरगिस के भांजे की शादी थी, वो दावत देने आए थे। नरगिस के इसरार पर 2 दिन ठहर गए। असद ऑफिस वर्क से 7 माह से लंदन में था। हफ्ते बाद इसकी वापसी थी। इसकी वापसी पर नरगिस ने इसे भांजे की शादी का बताया, और साथ ये हुक्म भी दिया कि वो रुताबा को साथ लेकर जाएगा, और ज़यान नरगिस के पास ही होगा। असद किसी सूरत तैयार ना था इसे साथ ले जाने के लिए, पर नरगिस भी इसी का खून था। इसने अपनी बात मनवा कर छोड़ी। रुताबा बहुत डरी हुई थी कि वो कैसे जाएगी असद के साथ। नरगिस ने इसे तसल्ली दी। असद को बाय रोड जाने का बहुत शौक था। इसने बाय रोड जाने का ही फैसला किया। नरगिस और रुताबा ने सारे सफ़र की तैयारी की, और नरगिस की दुआओं के साए में वो रुखसत हुए। असद बिल्कुल खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। रुताबा बाहर की दुनिया के मनाजिर देखती रही। अभी वो फैसलाबाद के एक गाँव के करीब पहुँचे तो असद की गाड़ी ख़राब हो गई। शाम का वक्त था, मौसम के आसार भी काफ़ी ख़राब थे। बादल
دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا برس سے تو تھمنے کا نام نہیں لیں گے۔ کوئی ہوٹل بھی قریب نہیں تھا، نہ کوئی آبادی تھی، چاروں طرف کھیت کھلیان تھے۔ اسد گاڑی کا بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا۔ رتابہ کار سے باہر نکلی اور اپنے چاروں طرف ہوا سے لہراتے سبز کھیتوں کا نظارہ تکتے تکتے کھیتوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اسد گاڑی میں جھکا اتنا محو تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا رتابہ کب گاڑی سے دور کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ اتنا خوبصورت نظارہ دیکھ کر رتابہ کو لگا وہ جنت میں آ گئی ہے۔ وہ اونچے اونچے کھیتوں میں داخل ہو کر کھو سی گئی۔ سبزے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتی وہ مسکراتی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور سبزے کی خوشبو اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ اسد گاڑی سے کچھ سامان نکالنے آیا تو دیکھا رتابہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کپڑے سے صاف کرتے آس پاس اسے دیکھا، وہ نہیں تھی۔ اسد کا دل خوف سے دھڑکا، کہاں گئی یہ؟ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی چیخوں اسے اپنے دائیں طرف کھیتوں سے آتی سنائی دی۔ اسد اسد وہ بھاگتا ہوا اس کی آواز کی طرف لپکا اور کھیتوں کے قریب پہنچا تو اسے سامنے آتا دیکھ کر رتابہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ رتابہ کے سینے سے لگتی اسد کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رتابہ کی رقابت کا ایک عجیب سا احساس اس کی رگوں میں دوڑا جاری ہے۔